25, feel the rhythm come alive. सोनारी धरती चांदी रो आसमान रंग रंगीलो रस भरो मोरे प्यारा जसमा केसरिया बालो आओ നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ദിവ്യ മോൾ TS. കേരളത്തിന് എറണാകുളം ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടായ വള്ളംകളിനെ നിർമ്മാണിച്ച് പാടുന്ന പാട്ടാണ് കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചയിലെ. നന്ദി. सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं कृतिका कश्यप हाँ। आज बहुत खुशी के नाल ਤੁਹਾਡੇ सामने कंगी बाबा ਦਾ गीत सुनान जा रही ਹਾਂ। ਇਹ गीत मैं दिलों ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ उम्मीद ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ पसंद करोगे। ਤੁਹਾਡੇ प्यार ਤੇ सहयोग ਲਈ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं
নমস্কার, আমার নাম নিহারিকা রঞ্জন। আজ আপনাদের সামনে আমি একটি বাংলা কমলা পরিবেশন করতে চলছি। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो ना रूपक जेना। आज आपण मानक सम्मुखें गोटे ओडिया गीत रंगपति प्रस्तुत करुछि। आशा करुछि आपण माने उपभोग करिबे। जय महाराष्ट्र, मी श्रेया पाटील आहे। आज सभे समारोहाचे महाराष्ट्राचे लोकप्रिय गीत लावणी गात गाणार आवडेल। जे गाण्याचे नाव आहे वाजले की बारा। आशा आहे तुम्हाला माझी प्रस्तुती नक्कीच आवडेल।
आज हम आ समय के सामने एक गीत कोयल बिन बगिया प्रस्तुत करे छे। आशा छे जे आ समय के ई गीत पसंद आई। बगिया ना सोवे राजा
छोटे छोटे शहरों से खाली बोर्ड बहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। छोटे छोटे शहरों से खाली बोल दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। ओ हो हम चले कोई रामचंद्र रे, हम चले कोई रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क धड़क सीटी बजाए रे, धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 मुझे बुलाए रे। खुदा का हुक्म और एक माँ की दुआ है। के हाथों की लकीरों को भी रुखसत कर, रोकने से भी नहीं रुकेगी तुम्हारी ये सल्तनत।
Don't dress us thus. Are you annoyed because they are still refusing to pay this 2 rupee a month? On I don't wish to talk about it. I haven't even received my regular pay. This is the 20th of the month. Who would think a bank could hold up a poor man's salary? As soon as I get my money, I am off. I will not even work a single day in this place anymore. well, I wish you good luck. I'll keep a lookout for jobs that might suit you. I know a suitor boy who is looking out for work. He can join you next month. He is working with the bank just now, but they aren't giving him his pay and he wants to leave. Is that so? Then tell him to come and see me tomorrow. Okay, madam. See, how is this? Very nice, very nice. Do you know, my dear, that Seth Govind Ram's bank can't even pay its employees? Only this morning I heard a complaint from their sweeper who hasn't received his wages for over a month. If they can't pay their super, they must be in a very bad way. None of the others could be getting paid either. So, there you are. I have been looking for you almost an hour. Where did you disappear? Had you remained stationary at one point, I might be found you. But you go from one shop to another shop like a bees in a flower garden. Don't start grumbling. The heat is dying enough. I don't know what is happening to the citizens of Pipalagai. Even the bank is about to go bankrupt. What? What's that? Which bank? Why the people in the bank? Of course I had. Stop paying their interest. Don't tell me you have an account there. No, I don't have, but my neighbor Deepchand, he has. Deepchand? Hey Deepchand! What Deepchand, Deepchand? Do you know the news at the latest? No. The People Nagar bank is about to collapse. You should better get your money out as soon as you can. What? Hey, can I have a phone, please? Sure, take my phone. It is not ringing. And I'm gone. The Seth is not at home. He was holidaying in Kashmir. I don't believe it. Friend. Eh? Look, the bird has flown away. Seth Govindram has left the town. Oh, really? Yes, Oh my God. definitely it means collapse. Oh really? The bank is going to close? Yes, Brother, let's go to the bank and get back our money from the safe. yes, brother, let's Brother, go. let's go. Do you know that the Seth Govind Ram's bank is about to close? Really? The bank is about to close forever. Oh, Rohini, have you heard? The Seth Govindram bank is going to close forever. Oh really, Simran, the bank is about to close. Oh God, I have kept all my savings there. Do you all know that Seth Govindram left the town? No. Seth Govindram has left the state. No, Seth Govindram has left the country. Oh, you all mad. You all don't know anything. I have heard that Seth Govindram has left the world. He was hanged at the people tree. Let's go fast to find him. Yes, let's go. In the name of God, please give some money. Please give some money.
the name of God, please give some money. Please give some money. Hey, please give some money. God will bless you. Please give some money, rich man. God will bless you. Please give some money. God will bless you. Hey, do you know the bank is about to close? Oh, really? The bank is going to close. Yes. Yes. Oh Lord, my money. I have earned the money by doing so much hard work. My money. Oh Lord. Oh madam, where? Where is my money? My 1,000. Please give it to me. Fast, madam, fast. Wait. My money. All the staffs be clear and attentive. There is a rush, so be careful. Madam, we have lots of cash available, but why the people are in such a hurry? Yes, madam, I am in such a rush in the bank. What could be the reason? Guard, please go and handle that. Please everyone go back. Hey, move. Please be nice. Listen everyone, the bank has enough money to give to all their customers, so don't panic. We want right now. He's right. The bank has enough money and you all will get your money back. So be patient. We want our money right now. Give our money. Surma bhai, there is always a police to save the safe. Our people always get trouble, and the safe and the police enjoy their life. Life, enjoy. Yes, Shola bhai. Life is very hard and everyone works day and night. Then they are able to save money. And this policeman is trying to save the safe. Who look at everyone's money. We want our money. We want our money. Lingam sir, we know that you have taken a bribe from Seth Govind Ram and you are trying to save him. We want our money! We want our money. We want our money. We want our money. Everyone, let's charge! Hooligans, sons of donkeys, as though it isn't bad enough to be paid late, it seems my work has also to be increased. Hey, Nathu? What, Nathu? Nathu, are you ready to take a new job or what? Why? Why? He don't know why. Hey, John, come. Tell him why. Tell why. Why? Hey, move. How's that? How it could have happened? How the bank could collapse? Will I get my money? My money or not? Well done, poor Nathu. You will definitely get your money back. Wow, what a fabulous performance it was. Please join us in welcoming our talented dancers as they bring alive the spirit.
बाबा बाबा मेरी असली बाजू तो तू है तानाजी। लोग वसीयत में बहुत सारी चीजें छोड़ के जाते हैं, मैं तेरे लिए कर्ज छोड़ के जा रहा हूं, इस बेटे की आजादी। तानिया हर हर महादेव। मुक्काम उमरठ, नाम सूबेदार ताराजी मालुसरे। सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है आए भवानी। सरर आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिले हमने, बात यही मन में ठानी है आए भवानी। नहीं तो झोलिया भरी है, अब ये शीश नाच से तेरी रोज हम तके तेरे नहीं समझना जगदम्बा है आए भवानी, आए भवानी। औरंगजेब के पास एक खूंखार निर्दयी बेसालार था, जिसका नाम था उदय भान।
बाप को हमारा किलेदार चुनते हैं और इसीलिए हम आपके लिए एक नायाब तोहफा लाए हैं। कोठाला खतरे में है और उसे बचाने हम खुद जाएंगे। महाराज, आपके लिए कोठाला ये तालियां जीत के आएगा। तानाजी, तुम इस मुहिम पर नहीं जा सकते, तुम्हारे घर पे शादी है। महाराज, स्वराज्य की शपथ इस शादी से कहीं बढ़कर है। लहरा दो ये भगवा झंडा और कर दो ऐलान, पहले शादी कोटाला की, फिर मेरी नायबा की। निकल गए मुहिम पर और फिर हुआ सामना उदय भान और तानाजी का। स्वीकार करावा। गड आला पर सिंह गेला। लाखों का पालनहार उस दिन फूट फूट कर रोया था। कोंडाला को जीत कर तानाजी भगवे में समाया था।
समझ गए, कोई नहीं आ रहा है। Let's go. ये क्या तमाशा लगा रखा है क्लासरूम में? अब अगर किसी ने आवाज की तो मैं सबको क्लासरूम से बाहर कर दूंगी। ओह नो! जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल।
देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो दाएं देखो बाएं देखो आगे देखो पीछे देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो। अरे सुनो 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 सुनो, देखो तो सही यहाँ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है क्या हो रहा है? अरे हमें भी तो बताओ यहाँ क्या हो रहा है। अरे भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है? यहाँ तो समाज में महिलाओं पे अत्याचार और शोषण हो रहा है। नमस्कार, हम सैन पॉल एकेडमी के छात्र एवं छात्राएं आपके समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को तो घर की लक्ष्मी माना जाता है, तो क्या यही सोचकर हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं? तो आइए इस दृश्य में देखते हैं। ये वास्तव में फुटबॉल थी। भैया भैया क्या मैं आपके साथ फुटबॉल खेल सकती हूँ? अच्छा मजाक है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, लड़कियां फुटबॉल नहीं खेलती। पर मैं बहुत अच्छा फुटबॉल खेलती हूँ। अभी हम सीखे नहीं और ये खेलेंगी फुटबॉल। भैया प्लीज प्लीज मुझे भी फुटबॉल खेलना है। अरे नाजुक कली खुद यहाँ से फुटबॉल खेले। चल भाई तो देखा आपने, ये सोचते हैं लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल सकती, ये सोचते हैं लड़कियां लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती। तो क्या यही लड़कियां घर के बाहर सुरक्षित है? आइए इस दृश्य में देखते हैं। और भाई क्या चाल है? बस बस बिंदा। अरे चल चल पीछे कर रूप में निकला न करो रूप की रानी, काला रंग काला। अरे देखेंगे भाई देखेंगे बच्चों से। रूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पर जाए। लगता है हम लोग को शक हो गया। हाँ भाई सही बोला। निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पर जाए। अरे क्या बात है, क्यों हमारा पीछा कर रहे हो? पीछा अब तुम्हारा और हम, अरे ओ फूल कुमारी इतनी भी सुंदर नहीं है तुम, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। क्यों भाई? जी हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है। चल चल निकल यहाँ से, पर यही बोलने धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पर जाए। देखा आपने, हमारे समाज में महिला तो घर के बाहर खुलेआम चल भी नहीं सकती है, तो क्या वो घर के अंदर सुरक्षित है? तो आइए इस दृश्य में देखते हैं। पापा पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए, किताबें खरीदनी है, तो मेरी टीचर ने बोला है। किताबें? कैसी किताबें? दी तो थी मैंने खरीद के। पर पापा वो किताबें तो मैंने पढ़ ली, अब मुझे नई किताबें चाहिए। कोई पैसे नहीं मिलेंगे नई किताबों के लिए, ऐसे भी लड़कियां नहीं पढ़ती। जा अपनी माँ का रसोई में हाथ बटा। ए सुन, मेरे लिए एक कप चाय बना के ला। पापा ये देखो मेरा बैग टूट गया, मुझे पैसे दो, मुझे एक नया बैग लेना है। अरे हाँ बेटा, ये में टूट गया। चल बेटा मैं तुम्हें एक क्या 10 बैग दिलाता हूँ। बात चाहे घर की हो या बाहर की, समाज में महिलाओं को हर जगह अपमान ही सहना पड़ता है। एक बच्ची को जन्म से लेकर मृत्यु तक कई दुखों का सामना करना पड़ता है, जिसमें चाहे घर वाले हो या ससुराल वाले, दोनों ही अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। तो आइए इस दृश्य में देखते हैं। अजी सुनते हो, वो जो अपनी कुंदन की
बस एक पता था, देखा ना लोग ने कितनी काय किचकिच की है इस देने में। हाँ वही तो है ही, वो लोग एक नंबर की चिपड़ी है। मम्मी जी चाय। ये कैसी चाय है? वैसे चीनी में पत्ती। देखो जरा मैरी पी के। छी कर्मचारी, तूने ये कैसी चाय बनाई है? तेरी माँ ने तुझे चाय बनाने के माफ कर दीजिए। ये तो भागे करने लगे, क्या करता है? हमारे कुंदन के तो भागे फूट गए। जो चलो पानी में डूब मर। माफ कर दीजिए। पहले बेटी और फिर बहू, आखिर कितना सहे हम? और अगर इससे भी मन नहीं भरता तो उस माँ को कोसा जाता है जो हमें जन्म देती है। इतना ही नहीं, अगर किसी घर में बेटी पैदा हो जाए तो देखिए उसकी क्या हालत होती है। चुप चुप दिया सोला लो पापा बनवा के भाग जाते हो। चुप चुप दिया सोला लो पापा बनवा के भाग जाते हो। लल्ला लाल हुए कुलवा के दीपक बनवा में आस लगल हो। ओ फूलमती चाची, इतना जोर जोर से गावे की जरूरत ना है। बेटी हुई है बेटी। अब लगेंगे दहेज के खर्चे, अब लगेंगे परिवार के नाम पे कलंक और कोनो आमदनी ना होगी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारे खानदान में बेटी जन्म नहीं ले सकती। मैं कैसे इस समाज को अपना मुंह दिखाऊंगा? दहेज के पैसे, इतने सारे खर्चे मैं कैसे करूंगा? नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं। बेटा कुंदन, ओ बेटा कुंदन। जी चाचा। क्या हुआ? बेटी हुई है ना? अरे कोई बात नहीं, छोड़ दे आएंगे अनाथालय में। चल मेरे साथ। ऐसा हो सकता है चाचा? हाँ, चल चल। और सुन, किसी से बोलना मत। चल मेरे साथ। चल चल। तो देखा आपने, यही है हमारे समाज में महिलाओं की इज्जत और सच्चाई। बचाओ बचाओ, मुझे आजादी चाहिए। आजादी चाहिए? हाँ, मुझे आजादी चाहिए। आजादी कैसी आजादी? अगर तू चुप रह और आजादी की भीख मांगना छोड़ दे। अगर तुम्हें इस समाज का हिस्सा बन रहना है, तुम्हें शिक्षा और आजादी की भीख मांगना छोड़नी होगी। पर क्यों क्यों? मैं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना है, ना कि घर में बैठ के रोटियां बनानी है। क्या तुझे पढ़ना है? हाँ, मुझे पढ़ना है। लेकिन हम तुझे पढ़ने की आजादी नहीं देते हैं। पर क्यों क्यों? मुझे भी मेरी भावनाओं को व्यक्त करने की, बोलने की आजादी चाहिए। पर तू लड़की है, तुझे सपने देखने का कोई अधिकार नहीं। तेरा घर में रहना ही ठीक है। इतनी छोटी सोच। सपने? मैं क्यों नहीं देख सकती सपना? मैं क्यों नहीं कर सकती लड़कों की बराबरी? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि समाज में हमारा बेटा तुमसे कहीं गुना ऊपर है। इतनी छोटी सोच, इतनी छोटी सोच। पर मुझे इस रूढ़िवादी सोच से मुक्ति चाहिए। क्या तुझे मुक्ति चाहिए? हाँ, मुझे मुक्ति चाहिए। ए लड़की, अगर तुझे इस समाज में रहना है तो सर झुका के रहना होगा। ये कैसा समाज है जो मेरे साथ धर्म, शिक्षा और आजादी के नाम पर भेदभाव करता है? क्यों शिक्षा का अधिकार सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित है? क्यों हम बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है? क्यों हमें केवल घर ससुराल की जिम्मेदारियां ही निभानी पड़ती है? क्यों दहेज के नाम पर हमारी कीमत लगाई जाती है? क्यों मानसिक शोषण से तंग आकर हजारों महिलाएं आत्महत्या कर लेती है? और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये समाज चुपचाप तमाशा देखता है। अगर ऐसा ही है तो मैं नहीं जीना चाहती इस समाज में। मैं नहीं जीना चाहती इस समाज में। मैं नहीं जीना चाहती इस समाज में। तो देखा आपने, ये है हमारे समाज में महिलाओं की हालत। आज भी हमारे देश में ऐसी कई जगह है जहाँ महिलाएं इसी रूढ़िवादी सोच की जंजीरों से बंधी है। मैं मानती हूँ कि हमारे समाज में महिलाओं की हालत पहले से बेहतर हुई है, लेकिन आज भी हमें वो सम्मान और अधिकार नहीं मिल रहा है जिनकी हम हकदार हैं। हमारे देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपना नाम अलग अलग क्षेत्रों में कमाया है। तो हमें कोई हक नहीं कि क्षमता और विश्वास पे शक करे। हमें कोई हक नहीं कि हम उन्हें समाज में नीचा दिखाए और तुलना करें। तो आज
हम महिलाओं का सम्मान करेंगे। हम उन्हें ऊंचाइयों के हर उस मुकाम तक ले जाएंगे जिनकी वो हकदार है। हम उन्हें महिलाओं के हर मुकाम तक ले जाएंगे जिनकी वो हकदार है। हम उन्हें अपनी माँ, बहन और बेटी की तरह प्यार देंगे। हम उन्हें अपनी